Hello, class 8. Hope you all are very fit and fine. Yes, students. Actually, today we are going to discuss chapter number 7 from civics. And the chapter name is Understanding Marginalization. Okay. Today we are going to discuss some important topic from our society. Actually, this is the part of our society. This word is marginalization. That is a very important issue, a very important part of our society. That is, we can say that इफेक्टलेस मार्जिनाइजेशन का मतलब कह सकते हैं प्रभावहीनता, लाइक दैट, इस तरह के वर्ड इसको हम दे सकते हैं. हम आज मार्जिनाइजेशन क्या है एक्चुअली इसे समझेंगे. सो इन दिस चैप्टर टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस वन बाय वन दिस टॉपिक्स एंड द फर्स्ट टॉपिक इज व्हाट डज इट मीन टू बी सोशली मार्जिनलाइज्ड. हाँ, अगर सामाजिक तौर पे कैसे मार्जिनाइजेशन लोगों के साथ किया जाता है, इसका मतलब क्या है एक्चुअली. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस फ्रॉम दिस टॉपिक. Okay, and yes, after that we are going to discuss the Du's story. Yes, if you see chapter number 7 and page number 81, you got a story that is very interesting actually. And after that you are going to understand about something different that is belongs to marginalization, no doubt. But we are going to discuss the Du's story and we are going to understand some things actually. That is, we can understand that how persons, people or any community, whatever, marginalized on the basis of either socially or economically and whatever. Okay, after that we are going to discuss who are the Adivasis. Yes, it is actually very important part of this chapter, and in this chapter we are going to discuss about Adivasis, a kind of community that is basically exist in forest, survived in forest actually. And yes, this person are totally different from others, like कह सकते हैं जो आम कम्युनिटीज होते हैं उससे ये जो कम्युनिटीज हैं टोटली डिफरेंट है, बिल्कुल अलग है. अब इनकी लाइवलीहुड कैसी है एक्चुअली हम आज जानेंगे. कैसा इनका आदिवासी का लाइवलीहुड है, कैसे ये सर्वाइव करते हैं, इनका जो वर्क है, वे ऑफ वर्किंग है, ये सब कैसे है. Lots of things we are going to discuss in this chapter, and very important is the topic actually. After that we are going to discuss Adivasis and stereotype. Yes, actually Adivasi and stereotype is a point that is in this point actually we are going to discuss how actually this person are, actually ये person कैसे होते हैं, इसके बारे में इनका बिहेवियर, ह्यूमन बिहेवियर कैसा होता है, या फिर इनकी थिंकिंग आइडियोलॉजी कह सकते हैं वो कैसी है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. जब हम इस टॉपिक में आएंगे तो और भी क्लियर होगा थिंग्स. After that we are going to discuss last topic for today only, that is Adivasis and development. Yes, it is very important how Adivasis is going to be developed on that situation, on that time. What is the condition of Adivasis today actually, if they exist in our society, in our state, whatever place, they are actually developed or not. Both things, all things are included in this topic. So let's discuss this chapter one by one from beginning. Okay, so first of all I am going to discuss from here, and the topic is what does it mean to be socially marginalized. Okay, so let's see. To be marginalized is to be forced to occupy the side of fingers and thus not to be at the center of the things. Yes, पहले पॉइंट से ही हमें ये चीज क्लियर हो रहा है. यहाँ पे कह रहा है टू बी मार्जिनाइज्ड इज टू बी forced or occupy the side or fingers and thus not to be at all center of things. This is something that someone of you have probably experienced in the classroom or playground. How? Let's see. कैसे कुछ बच्चे जो है इस marginalization जो शब्द है इसको क्लासरूम कह सकते हैं, स्कूल या प्लेग्राउंड में इस चीज को एक्सपीरियंस किए होंगे, बट कैसे किए होंगे. Let's see. This is the matter for discussion. And if you are not like most people in your class, that is if your taste in music or film is different, if your accent marks if your accent marks you out from others, if you are less chatty than others in your class, if you don't play the same sports that many of your classmates, like if you dress differently in that
the chances they are that you will not be able considered to be in your peers. Yes, इसका मतलब ये हुआ कि अक्सर आपने देखा होगा कुछ क्लास में ऐसे बच्चे भी होते हैं जिनका इंटरेस्ट अदर बच्चों से बिल्कुल अलग होता है, डिफरेंट होता है। क्यों? क्योंकि उनका जो है, जैसे कुछ बच्चे जो है खेलने में, हमेशा खेल में इंटरेस्ट, मोस्टली बच्चे, अगर क्लास का स्ट्रेंथ 25 है तो आप देखोगे मोर देन 20 स्टूडेंट्स जो होंगे, खासतौर पर अगर बॉयज की बात करें तो अगर मान लो पूरे क्लास में 25 या फिर 20 बॉयज हैं तो मोर देन 15 to 17 बॉयज जो है वो क्रिकेट में इंटरेस्टेड होंगे, बट रियली 1 और 2 जो स्टूडेंट होंगे उनका इंटरेस्ट टोटली डिफरेंट होगा। चाहे वो खेल का मैदान हो, चाहे वो बुक्स हो, चाहे क्लास में मार्क्स हो, या फिर फिल्म या फिर ड्रामा, इन सब चीजों के लिए इंटरेस्ट की बात करें वो टोटली डिफरेंट होता है। और वैसे बच्चों को कह सकते हैं कि टोटली अलग, ठीक है, कॉमन ग्रुप से उसको अलग समझा जाता है, ठीक है, बच्चों के थ्रू। ये सोशली मतलब इस चीज को प्री डिसाइडेड होता है, बच्चों उसको बच्चे जो है क्लास में होते हैं वो अलग वे ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से उसे देखते हैं, अलग तरह से ट्रीट करते हैं, इस तरह की चीजें। सो ऑफन यू एंड अप फीलिंग दैट यू आर नॉट विद इट। हाँ, उस कंडीशन में आपको इस तरह की फीलिंग आई कि हाँ मैं इन लोगों के साथ नहीं हूँ, इनके समूह में इंक्लूड नहीं होता हूँ, मैं इन लोगों से टोटली डिफरेंट हूँ, कुछ अलग हूँ। ऐसा आपको फीलिंग आ सकता है जो वो बच्चा होता है जिसका टेस्ट या फिर इंटरेस्ट बाकी बच्चों से टोटली अलग होता है। एज if what you say, feel and think and how you act are not quite right acceptable to others। और हाँ, और इस तरह के जो आपके बिहेवियर, हम कह सकते हैं अलग शब्दों में कहना चाहें तो इस तरह के बिहेवियर जो है वो बाकी लोगों के थ्रू एक्सेप्टेबल नहीं होते हैं, बिकॉज हमारा ह्यूमन नेचर होता है कि अगर मान लो जहाँ सारे बच्चे खेल रहे हैं वहाँ अगर एक बच्चा ना खेले, वो अदर एक्सक्यूज दे मुझे इंटरेस्ट नहीं है, जहाँ सिंगिंग, प्लेइंग, इन सब चीजों में बाकी बच्चों से कुछ बच्चों का अलग टोटली इंटरेस्ट होता है उस कंडीशन में, तो ऐसे में बच्चों को, जो बच्चा डिफरेंट होता है उसको फील होता है कि मैं इन समूह से नहीं हूँ, मैं इस कम्युनिटी से कह सकता हूँ, कम्युनिटी दैट मींस उस स्टूडेंट्स के कम्युनिटी ग्रुप जो होता समूह उससे अलग हूँ, टोटली डिफरेंट हूँ, और उससे बाकी अदर्स जो होते हैं वो भी अलग डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें इंडिकेट कर रही है कि आप समाज से कैसे अलग हो सकते हो, सोसाइटी से सोशली आप कैसे अलग हो सकते हो। व्हाट डज मीन टू बी सोशली मार्जिनलाइज। इस मार्जिनलाइज वर्ड जो है, यानी हम कह सकते हैं प्रभावहीनता, किसी भी चीज का, किसी भी चीज का प्रभाव ना हो, या फिर कह सकते हैं कि टोटली डिफरेंट, नॉट इंटरेस्टेड इन एट ऑल, इस तरह की चीजें। आगे देखते हैं और क्लियर होगा ये जरा। As in the classroom, in the social environment too, yes, groups of people or community may have the experience of being excluded। बिल्कुल सही बात है, उस क्लास के उस बच्चे की तरह, जिस तरह उस बच्चे ने फील किया, बाकी बच्चों से ट्रीट किया उसके साथ, उसके वे ऑफ टॉकिंग या फिर थिंकिंग या आइडियोलॉजी बाकी बच्चों को जिस तरह से अलग होगी उस बच्चे की तुलना में, उसी तरह समाज में भी हमारा है, हमारे समाज में भी ठीक वैसा ही होता है। कह सकते हैं कि कुछ कम्युनिटीज ऐसे हैं, कुछ ग्रुप ऑफ पीपल ऐसे भी हैं जो इस तरह के एक्सपीरियंस ऑलरेडी फेस कर चुके हैं। कैसे, जरा देखते हैं, लेट्स सी। मैं फिर से बोल दूं, एज इन द क्लासरूम इन द सोशल एनवायरनमेंट टू, यस, ग्रुप्स ऑफ पीपल कम्युनिटी मे हैव बीन एक्सपीरियंस बीइंग एक्सक्लूडेड, वो भी कुछ अलग थलग होने का एक्सपीरियंस झेल चुके हैं। कैसे? द मार्जिनलाइजेशन कैन बी बिकॉज दे स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज। यस, पॉइंट यहाँ से स्टार्ट होता है। मार्जिनलाइजेशन इस आधार पे किया जा सकता है, वहां तो इंटरेस्ट की बात करी मैंने क्लासरूम में, बट यहाँ पे मार्जिनलाइजेशन इस आधार पे कह सकते हैं कि डिफरेंट लैंग्वेजेज फॉलो डिफरेंट कस्टम्स और बिलोंग टू अ डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप फ्रॉम द मेजॉरिटी कम्युनिटी। एग्जैक्टली, यस, ये बात हम कह सकते हैं। या तो वो उसका लैंग्वेज अदर से, जहां बाकी लोग हिंदी बोल रहे हैं वहां अगर कोई पर्सन या कम्युनिटी अगर कुछ डिफरेंट लैंग्वेज बोलता है तो कहीं ना कहीं उसे कुछ अलग थलग या फिर कह सकते हैं कि कुछ एक्सक्लूड होने का रियलाइजेशन होगा उसको। और सिर्फ लैंग्वेज ही नहीं, कस्टम्स, रिलीजन, इन सब चीजों पे भी के माध्यम से भी उसको इस चीज को फीलिंग होती है, और उसे कह सकते हैं कि कम्युनिटी भी अलग हो तो इस तरह के एक्सपीरियंसेस फेस करने पड़ सकते हैं उस कम्युनिटी को, उस पर्सन को। ओके, they may also feel marginalized because they are poor, considered to be low social status and viewed as being less human than others. Sometimes marginalized group are viewed to be hostility and fear। बिल्कुल सही बात है, कभी कभी तो इसके आधार पे भी कह सकते हैं कि अगर आप पुअर हो
अपने सोसाइटी, अपने समाज में अगर आप पुअर हो, गरीब हो, तो भी आपको कहीं ना कहीं मार्जिनाइजेशन का जो एक्सपीरियंस है वो देखने को मिलेगा, फील करने को मिलेगा। और इतना ही नहीं, अगर आप किसी लोअर कास्ट से या फिर आपका स्टेटस कास्ट से बेटर होगा कि हम कहें कि अगर आपका स्टेटस लो है इन कंपेयर टू अदर्स इन योर सोसाइटी, ऑन दैट सिचुएशन यू आल्सो फील द सेम कंडीशन। यस, हम कह सकते हैं। फिर कहता है दिस, और हाँ इतना ही नहीं, बहुत लोगों को तो इस चीज से डर भी होता है, एक तरह काइंड ऑफ फियर कह सकते हैं, अलग तरह की डर चिंता भी रहती है इस सब चीजों को लेके। कह रहा है दिस सेंस ऑफ डिफरेंट एंड exclusion leads to community not having access to resource and opportunity in the inability and assert their rights। और ये सबसे बड़ा कारण होता है। अगर ऐसा है तो उन लोगों को एक तरह का डर भय रहता है कि मुझे भी आम लोगों की तरह वो अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेगी, वो फैसिलिटीज नहीं मिलेगी, मैं अपने राइट्स का भी इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगा। कहीं ना कहीं इस बात का डर उन्हें सताता है जो इस तरह के एक्सपीरियंस को फेस करते हैं, और कहीं ना कहीं वो अपने राइट यानी अधिकार का भी इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। इतनी बड़ी प्रॉब्लम उन लोगों को झेलना पड़ सकता है, फेस करना पड़ सकता है। They experience a sense of disadvantage and powerless। Yes, हम कह सकते हैं कि वो कह सकते हैं कि disadvantages या फिर powerless मतलब प्रभावहीन कह सकते हैं, जिसका कोई भी किसी तरह का इम्पैक्ट ना हो, इफेक्ट ना हो, इस तरह के फीलिंग्स भी उन लोगों को अक्सर देखने को मिलता है। With a more powerful and dominant section of society who own land are wealthy, better educated and politically powerful। इनके तुलना में जो लोग जिनके पास अपनी जमीन हो या फिर पॉलिटिकली या फिर इकोनॉमिकली मोरली जो लोग पावरफुल है, या फिजिकली तो कह ही सकते हैं, इन सब माध्यम में जो पावरफुल, उनकी तुलना में ऐसे लोगों को जिनका स्टेटस लो है या फिर जो इस तरह के जो एक्सपीरियंस को फेस करते हैं, उनको कहीं ना कहीं बात का अलग सा डर, अलग सा चिंता, एनेक्सिटी जो है उनको पकड़ के रखती है। इतना ही नहीं, आगे कहता है दस मार्जिनलाइजेशन इज द सेल्डम यस experience is one sphere economic social culture and political factor work together to make certain group of society feel marginalized। ये सारी चीजें हैं जिनका मैंने नाम लिया, लाइक economic social cultural and political factor also always work for the person, work with the person, and it is the causes that a person always feel marginalized in group society whatever the person belongs to। ओके तो ये सारी चीजें होती है, चाहे आप कह सकते हैं इकोनॉमिकली कह सकते हैं, सोशली कह सकते हैं, कल्चर के आधार पर, पॉलिटिकल वे में, ये सारी चीजें हैं। अगर ये सारी चीजें काम करती हैं किस चीज में, सर्टेन ग्रुप इन सोसाइटी टू फील मार्जिनलाइज्ड। एक सर्टेन ग्रुप या सर्टेन जो कहते हैं पर्सन का जो कह सकते हैं कम्युनिटी हो, ग्रुप हो, उन लोगों को मार्जिनलाइज्ड कहीं ना कहीं करने में ये सारी चीजें एक साथ वर्क करती हैं। अगर आप इन सारी चीजों को फुलफिल नहीं करते हो तो कहीं ना कहीं आप समाज में अपने आप को मार्जिनलाइज्ड समझोगे, प्रभावहीन समझोगे, कोई इंपैक्ट नहीं होगा आपका, लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू आपकी तरफ अलग होगा, वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ थिंकिंग, एवरीथिंग इज टोटली डिफरेंट इन कंपेयर टू अदर्स बिकॉज यू आर ऑन द बेसिस ऑफ दिस थिंग्स यू आर मार्जिनलाइज्ड ऑन दिस सिचुएशन, ऑन दिस प्लेस, ऑन दिस कंडीशन आल्सो। सो in this chapter you will read about two communities that considered to be socially marginalized in India today। चलो इस चैप्टर में देखते हैं वो कौन से दो कम्युनिटीज हैं, ठीक है, जो बेसिकली सोशली मार्जिनलाइज्ड हैं, यस जिसे मार्जिनलाइज किया गया है इंडिया में आज के दिन में, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, लेट्स सी आवर नेक्स्ट टॉपिक इज दद्दूज स्टोरी। यस हियर इज अ काइंड ऑफ स्टोरी कह सकते हैं हम लोग, इट इज जैसे कि हम बचपन में कॉमिक वगैरह पढ़ा करते थे, उससे रिलेटेड उस तरह का कुछ यहाँ एक छोटा सा स्टोरी दिया, जरा पढ़ते और समझने की कोशिश करते हैं एक्चुअली किस बारे में है ये स्टोरी। दद्दूज स्टोरी दैट मींस कहीं ना कहीं दादाजी का, ग्रैंडफादर का इन्वॉल्वमेंट है, और वो इस बारे में क्या कहते हैं, लेट्स सी। Adivasis marginalization and Adivasi family in Delhi, Soma and Helen are watching the Republic Day parade on TV with their grandfather। बिल्कुल सही बात है। एक आदिवासी फैमिली थी जिसमें सोमा और हेलन दो थे। इन लोगों ने जो रिपब्लिक डे पे परेड हो रहा था उसको टीवी पे अपने ग्रैंडफादर के साथ देख रहे थे। उसमें से एक कहती है ओ सी एन आदिवासी फ्लोट। अच्छा क्या देखे, वो एक बच्चा कहता है उसमें से कि देखो, या तो सोमा या फिर हेलन में से कोई एक कहती कि देखो यहाँ आदिवासियों का जो है कह सकते हैं परेड निकला है। ददू व्हाई डू ऑलवेज दिस शो आदिवासीज एज ओनली डांसिंग। एक बच्चे के मन में ये क्वेश्चन आता, दादू जब कभी भी आदिवासी की जिक्र होती है, आदिवासियों को कहीं दिखाया जाता है, हमेशा उन्हें डांस करते हुए दिखाया जाता है, ठीक है।
तो ऐसा क्यों होता है, उसके मन में ये बात की क्यूरियोसिटी जगी। यस, डोंट दे नो एनीथिंग एल्स अबाउट अस। एक और बच्ची कहती है जो उसके पास, वो कहती है क्या उनको इसके सिवा और कुछ नहीं आता, सिर्फ और सिर्फ डांसिंग करने आता है आदिवासी कम्युनिटी को। तो दद्दू का रिप्लाई आता है, द लाइव्स ऑफ आदिवासी आर वेरी रिच, मोस्ट पीपल डोंट नो दैट। हाँ, बहुत लोगों को तो पता ही नहीं है। आप तो बात कर रहे हो सिर्फ डांसिंग की, दद्दू क्या डांसिंग आती है, लेकिन आदिवासियों की लाइफ जो है बहुत ही रिच है, बहुत ही धनी मनी कह सकते हैं, वो लोग अपने लाइवलीहुड को सरवाइव करते हैं, बहुत लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है। फिर दद्दू कहते हैं, When I was young, our village in Odisha was beautiful. Yes, we got everything we needed from the land and the forest around us. कह रहे हैं कि जब मैं छोटा था, तो कह सकते हैं कि जब मैं छोटा नहीं, मैं जब यंग था, युवा था, तो मेरा विलेज जो था उड़ीसा में था, बहुत ही खूबसूरत विलेज से मैं बिलोंग करता था, जो कि उड़ीसा से है। और मैं हर वो जरूरत की चीज अपने विलेज के उस लैंड से, उस फॉरेस्ट से मैं लेकर आता था, जिसकी मुझे अक्सर जरूरत होती थी। लाइक कह सकते हैं वुड, सोर्स ऑफ फूड, इस तरह की चीजें अक्सर वो अपने विलेज की जो लैंड है या फॉरेस्ट है उससे लाया करते थे। वी गॉट एवरीथिंग नीडेड फ्रॉम द लैंड एंड द फॉरेस्ट अराउंड अस। यस, वी इन टर्न रिस्पेक्टेड द लैंड एंड फॉरेस्ट एंड द रिवर। और बदले में हम सारे जितने भी जंगल, नदियां और जो जमीन थी उसका बहुत ही रिस्पेक्ट करते थे। कह रहा फिर सडनली वी वर टोल्ड दैट द फॉरेस्ट वाज नॉट आवर। अचानक फिर एक दिन ऐसा समय आया कि हमसे कहा गया कि ये जंगल हमारा नहीं है, बिकॉज हम तो स्टार्टिंग से ही, हमारे एंसेस्टर्स जो थे वो इस जंगल में रहते आए और ये जंगल हमारा था। हम जंगल से किससे जरूरत की सारी चीजें लाया करते, बदले में हम जंगल, नदियां और वहां की जो जमीन थी उसकी रिस्पेक्ट करते थे, उसका केयर करते थे, हर तरह से देखभाल करते थे। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि अचानक से कहा गया कि ये जो जंगल है, यहाँ की जो जमीन है, जगह है, ये अब आपका नहीं रहा। आगे देखते हैं कैसे क्या हुआ। Forest officials and contractor cut down the large part of it. If we protested, they beat us and then took us in court, where we did not have our lawyers and could not find our cases. और एक समय ऐसा आया कि फॉरेस्ट ऑफिशियल यानी कि जो फॉरेस्ट पदाधिकारी हुआ करते थे और कॉन्ट्रैक्टर, वो लोग जो वहाँ के प्लांट्स थे उसे कट करने लगे। बहुत बड़ा हिस्सा उन लोगों ने काट दिया जंगलों का। और इतना ही नहीं, जब अगर हम लोग प्रोटेस्ट करते तो बदले में क्या होता, वो लोग हमें उठाकर हमें पीटते तो अलग और कोर्ट में लेकर जाते। लेकिन हमारे पास प्रॉब्लम था वेयर वी डिड नॉट हैव आवर लॉयर, जहाँ पे कि हमारा अपना वकील नहीं होता और हम केस नहीं लड़ पाते और लोगों से केस नहीं जीत पाते, क्योंकि हमारे पास अपना लॉयर नहीं था और वो लोग हमें पीटते। और इतना ही नहीं, उन लोगों ने यानी कि फॉरेस्ट ऑफिशियल यानी कि फॉरेस्ट पदाधिकारी जो थे वो लोग और कॉन्ट्रैक्टर मिलकर लगभग बहुत जंगल को साफ करते चले गए। फिर एक पूछती है उसमें से उनकी जो ग्रैंड डॉटर थी, वो पूछती है देन हाउ डिड दे सर्वाइव दद्दू, फिर वो लोग कैसे सर्वाइव करते थे अगर इतना सब कुछ इंटरफेरेंस हो चुका था इन लोगों का, फिर वो आदिवासी थे वो कैसे सर्वाइव करते थे। तो दद्दू का रिप्लाई आता वहां कहते मेनी ऑफ अस वी आर फोर्स्ड टू लीव आवर होम्स एंड फाइंड सेशनल वर्क इन नियर बाय टाउन। दद्दू का रिप्लाई आता है कि हम लोगों में से बहुतों को तो फोर्स किया गया कि क्या टू लीव द होम, आप अपने घरों को छोड़ दीजिए, जंगल जो पहले आप यहाँ रहा करते थे छोड़कर आप चले जाइए कहीं दूर। और इतना ही नहीं, बहुतों को तो बोला गया कि आप कोई सीजनल वर्क क्यों नहीं ढूंढ लेते। सीजन के अकॉर्डिंग अक्सर कैसे, जैसे विंटर में या फिर जिस भी चीज का, किसी भी काम का, पर्टिकुलर काम का कोई जो सीजनल वर्क होता है, जैसे इस सीजन में ये वर्क ज्यादा मिलता है, तो उस तरह का वर्क क्यों नहीं ढूंढ लेते हो, क्योंकि अब आपको यहाँ सरवाइव नहीं करना है, अब आप लोग यहाँ से घर को छोड़कर जाना पड़ेगा। ये दद्दू ने बताया अपने ग्रैंड डॉटर को। फिर आता है Then the company was scammed. They said there was iron ore under our land. They wanted to mine it. They promised jobs and money if we sold our land. Then और वहाँ पे कुछ जो है ऑफिशियल पदाधिकारी पहुँचते हैं, कंपनी के जो उच्चाधिकारी होते हैं वो लोग पहुँचते हैं और वो लोग कहते हैं कि यहाँ पे आपकी जंगलों में, आपकी जमीन के नीचे बहुत सारे आयरन ओर दबे हुए हैं और हम लोग इसे माइनिंग यानी इसे की खुदाई करना चाहते हैं, इस आयरन ओर को बाहर निकालना चाहते हैं। और इतना ही नहीं, कहता है दे प्रॉमिस टू जॉब एंड मनी इफ वी सोल्ड देम टू आवर लैंड। और वो कह रहे हैं कि मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं
आप लोगों को जॉब दूंगा, उसके बदले में पैसे दूंगा अगर आप अपनी जमीन हमें बेच देते हैं। क्योंकि वो जानते थे कि इस जमीन के नीचे बहुत सारे आयरन ओर दबे हुए हैं, जिसका हम इकोनॉमिकली कह सकते हैं बहुत ही बड़ा बेनिफिट हो सकता था उन लोगों को। और उन लोगों ने गांव वालों को फोर्स किया कि आप ये जमीन हमें बेच दो, बदले में हम आपको पैसे देंगे, बदले में जो फैक्ट्री बैठेगी उसमें हम आपको जॉब देंगे। क्या ऐसा हुआ, जरा देखते हैं। Some villagers were excited, others said this would destroy our lives and we would got nothing. Some gave thumbprint, not realized to we are selling the land off. Yes, बहुतों ने कहा, बहुत तो एक्साइटेड थे कि अरे वाह चलो अच्छा है अगर हम अपनी जमीन को बेचते तो बदले में हमें पैसे मिलेंगे, नौकरी मिलेंगे। लेकिन कुछ जो थे उसका अपोज कर रहे थे कि नहीं आप लोग ऐसा मत करो, अगर आप ऐसा करते हो तो बदले में आपको कुछ नहीं मिलने वाला, बल्कि आपका जो अपना जमीन है, जायदाद है, वो सब चला जाएगा। और इतना ही नहीं, फिर आगे कहता है बहुतों ने थंब प्रिंट लगा भी दिया और उन्होंने उनको इस बात की बिल्कुल भी रियलाइज नहीं हुआ कि वो कितनी बड़ी गलती करने जा रहे हो अपनी जमीन को बेच के। क्या वाकई में जॉब और पैसे मिलने वाले थे? देखते हैं। Only a few were given taken job, but most us did not say. और कुछ जो है बहुत उनमें से कह सकते हैं only a few were given टोकन जॉब, बहुत कम को ही जॉब मिला। यस, बट मोस्ट ऑफ डिड नॉट सेल। लेकिन बहुत सारे जो वहाँ के आदिवासी थे, वहाँ लैंड ओनर थे, उन लोगों ने बेचा ही नहीं। फिर क्या हुआ? Then they beat and treated us till eventually everyone forced to sell and abandon the land of the forefathers. Yes. और इतना ही, जब वो आदिवासी लोगों ने डिनाई कर दिया जमीन को बेचने से, तो उन लोगों ने क्या किया, ऑफिशियल जो थे और कॉन्ट्रैक्टर, उन लोगों ने इन्हें पीटा, डराया, धमकाया, मारा भी। और इतना ही नहीं, वो इन्हें फोर्स कर रहे थे कि आप अपनी जमीन को बेच दो और ये जगह का अबैंडन यानी छोड़ दो, खाली करके हमेशा के लिए यहाँ से चले जाओ। यस, लैंड ऑफ देयर फोर्थ फादर्स, मतलब कह सकते हैं कि अपनी जो पुश्तैनी जमीन है उसे आप छोड़ दो या हमें बेच दो और यहाँ से हमेशा के लिए आप लोग छोड़कर चले जाओ। एंड हैड सपोर्ट टू द अथॉरिटीज, आवर होल वे लिविंग वैनिश ओवरनाइट। और कह रहे थे कि आप लोग ऐसा करके अथॉरिटी को सपोर्ट करो, यहाँ जो अथॉरिटी एस्टेब्लिश हो उसे सपोर्ट करो। और एक दिन ऐसा आया कि हमारे जितने भी हमारी लाइवलीहुड थी, लिविंग वे ऑफ लिविंग थी, वो सब वैनिश हो गए, वो सब खत्म हो गए, धुल गए एक रात में। राइट, फिर कहता ओ दद्दू एंड आवर लैंड व्हाट, और हमारा जमीन, उनका जो ग्रैंड डॉटर है वो पूछती कि हमारा जमीन वो क्या हुआ उसके बारे में। तो वो दद्दू कहते हैं फॉर आवर 30 एकर्स वी गॉट अ लिटिल मनी फ्रॉम वन कॉन्ट्रैक्टर। लगभग 30 एकड़ यानी 30 एकड़ जमीन जो है उसके लिए हम लोग को बहुत ही कम पैसा मिला उस जमीन के बदले कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू। आई नेवर सॉ मोस्ट ऑफ द फ्रेंड अगेन। और इतना ही नहीं, मैं अपने लगभग दोस्तों को दोबारा मैंने उस जगह पे या फिर लाइफ में कभी देखा ही नहीं, बिकॉज वो लोग जमीन को बेच के कह सकते हैं या फिर कह सकते हैं छोड़ के हमेशा के लिए वो लोग चले गए। ठीक है, तो ये दद्दू ने अपनी स्टोरी बताई कि ऐसा हुआ था। 30 एकड़ जमीन जो है, फॉर आवर 30 एकड़ वी गॉट अ लिटिल मनी, 30 एकड़ जमीन के बदले में बस चंद पैसे मिले मुझे। और इतना ही नहीं, इसके बाद जो हमारे जो दोस्त साथी हमारे नेबर्स थे, मैंने आज के बाद फिर कभी नहीं देखा उन लोगों को। ऐसा हुआ था हम लोगों के साथ। आगे कहता है द मनी हार्डली लिस्टेड इन द सिटी, वी हैड नो मींस टू लाइवलीहुड एनीमोर, वी वेर ऑल crammed into a tiny rent room, how missed our carefree lives and open space। और हाँ, और इतना ही नहीं, दद्दू जो कह रहे थे कि उनका जो हाल था वो जो चंद पैसों से बहुत दिन तक टिकने वाले नहीं थे शहर में, वो पैसे बहुत ही जल्द खत्म होने वाले थे। इतना ही नहीं, we had no means to livelihood anymore, हमारे पास अपनी जीवनचर्या यानी अपनी लाइवलीहुड को आगे करने के लिए, बढ़ाने के लिए, सर्वाइव करने के लिए कोई भी सोर्स, कोई भी जरिया, कुछ भी नहीं बचा था हमारे पास। और इतना ही नहीं, हम लोग एक छोटे से तंग जगह पर रेंटेड रूम में रहने के लिए मजबूर थे। हाउ वी मिस्ड आवर केयर फ्री होम एंड लैंड ऑल्सो। और वो कहते हैं कि कितना बड़ा हमारा जमीन हुआ करता था, कितने बड़े बड़े जंगल हुए करते थे, कैसे मैं उन सब चीजों को मिस कर रहा हूँ, बहुत मिस करता हूँ, बिकॉज वो हमारा नहीं रहा जो कि हमारा पुश्तैनी जमीन कभी हुआ करता था। इतना ही नहीं, after a few years of your father got a job in Delhi, after a few years your father got a job in Delhi and we all moved here। और वो क्या अपनी
बच्चों से कह रहे हैं कि कुछ समय कुछ साल के बाद जो आपके जो फादर हैं उनकी जॉब जो है दिल्ली में लग गई, हम लोग वो सारी जमीन को हमेशा के लिए छोड़कर कहाँ दिल्ली शिफ्ट हो गए, यहाँ चले आए। दोज वर वेरी डिफिकल्ट टाइम, दैट इज व्हाई बोथ ऑफ यू डिड नॉट गो टू द स्कूल सेपरेटली, और यही कारण था, वो बहुत ही कठिन समय था हमारे लिए, और यही कारण था बच्चों कि आप लोग कई सालों तक स्कूल तक नहीं जा पाए, बिकॉज हम लोगों के पास लाइवलीहुड को रन करने के लिए या कह सकते सर्वाइव करने के लिए पैसे नहीं थे हमारे पास। बाद में जब आपके फादर की जॉब लगी तो हम लोग दिल्ली शिफ्ट हुए। उनमें से एक उनका ग्रैंड डॉटर कहती है आई हेट गोइंग बैक टू स्कूल, व्हाई, उनमें से कहती है कि मुझे स्कूल जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं होगा, क्यों, we had missed so much of our studies and other children made fun of us, we spoke संथाली at home and did not know Hindi। उसकी सबसे बड़ी पैराडॉक्स विडंबना ये थी कि वो कहती है कि हम स्कूल जाना कोई पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोगों की बहुत बड़ी भारी भरकम स्टडी में नुकसान हुआ है, हम लोगों ने बहुत कुछ छोड़ दिया। वही हमारे दोस्त जो इन सब चीजों को पढ़कर बहुत आगे निकल चुके हैं, और इतना ही नहीं, जब हम जाएंगे तो वो हमारा मजाक भी उड़ाएंगे। और एक कारण और था कि हम लोग, वो कहते हैं वी स्पोक संथाली एट होम, हम लोग घर पे संथाली भाषा का इस्तेमाल करते हैं, इवन हमें हिंदी तक नहीं आती है ढंग से बोलने, तो ऐसे में कैसे होगा। फिर कहती है बट नाउ वी हैव फ्रेंड आई कैन इवन स्पीक इंग्लिश नाउ, बट कहती है कि मेरे पास कुछ दोस्त था और मैं, एक कहती है कि मैं अब तो कुछ इंग्लिश भी बोलने लग गई हूँ, लेकिन इतना ही काफी नहीं था। आगे कहता है आई विश आई कुड हैव शो माई फ्रेंड आवर विलेज बिफोर इट वाज डिस्ट्रॉय, वो कहते हैं कि काश ऐसा होता कि मेरा कभी, एक कहता है उनमें से कि काश मैं विश करता हूं कि मेरा कभी विलेज डिस्ट्रॉय होता, उससे पहले मैं अपने दोस्तों को एक बार देख सकता। यू कैन स्टिल टेल हर, फिर ग्रैंडपा कहते हैं You can still tell them about our village. It has a lot of teach them. और इतना ही नहीं, आप उन लोग अभी भी अपने विलेज के बारे में बता सकते हो, समझा सकते हो। You can still tell them about our village. आप अपने दोस्तों को अपने विलेज के बारे में बता सकते हो। Yes, it has lot of to teach them. और उसमें से बहुत सारी चीजें जानने को मिलेगी, समझने को मिलेगी, आप उन्हें जानकारी दे सकते हो। One day I will make a movie on that story. और इतना ही नहीं, उसकी एक और जो ग्रैंडसन होती है, ग्रैंड डॉटर होती है, वो कहती है कि yes, One day I will make a movie on this story. वो कहती है मैं एक दिन इस स्टोरी के ऊपर मूवी बनाऊंगी, जो भी स्टोरी हम लोगों ने डिस्कस किया उसके ऊपर मैं एक मूवी बनाऊंगी। यस, आवर स्टोरी द आदिवासी स्टोरी, और उसका नाम भी उसने दिया, वो बोली हमारी स्टोरी जो होगी उसका नाम होगा द आदिवासी स्टोरी। बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। ये थी हमारी दद्दू की स्टोरी। दद्दू ने बताया कैसे हम लोगों ने उस क्रिटिकल कंडीशन में उसको झेला था, उसको समझा था, और इन सारी चीजों को हम लोगों ने फेस किया था, इतने बड़े ट्रबल कंडीशन कह सकते हैं, ठीक है। आगे कहता है यू जस्ट रीड अबाउट हाउ दद्दू वाज फोर्स्ड टू लीव हिज विलेज इन ओडिशा। हाँ, अभी भी हमने पढ़ा कि कैसे दद्दू को फोर्स किया गया, जो कि वो उड़ीसा में जो विलेज था उसको आप छोड़ दीजिए हमेशा के लिए, और उनके साथ किस तरह से फ्रॉड भी किया गया एक तरह से देखा जाए तो, क्योंकि 30 एकड़ के बदले चंद पैसे देकर उन्हें वहां से हमेशा के लिए निकाल दिया गया, भेज दिया गया। यस, कहते हैं दद्दूज स्टोरी इज सिमिलर टू द लाइव्स ऑफ मिलियन ऑफ आदिवासी इन इंडिया। बिल्कुल सही बात है, ये एक सच्चाई है। कह रहा है दद्दू की जो स्टोरी है बहुत हद तक समान है, इंडिया में बहुत सारे आदिवासी रहते हैं उनके साथ भी बिल्कुल वैसा ही होता है, और होता रहा है पहले से, जैसा दद्दू के साथ हुआ था। इसलिए कह रहा है दद्दू स्टोरी इज similar to lives of million of Adivasis in India. Yes, you will read more about the marginalization of this community in this chapter. Yes, इस चैप्टर के में हम लोग और भी ज्यादा पढ़ने वाले हैं मार्जिनाइजेशन क्या होता है और कैसे किसी कम्युनिटी, किसी रिलीजन, किसी भी लैंग्वेज के आधार पर कैसे किसी को मार्जिनलाइज्ड किया जाता है, इसके बारे में और डीपली हम पढ़ने वाले इस चैप्टर में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस फर्स्ट हु आर आदिवासी। अभी हमने दद्दू की स्टोरी सुनी और हमने जाना कि दद्दू तो कहीं ना कहीं आदिवासी कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, बिकॉज वो फॉरेस्ट में सर्वाइव किया करते थे, बाद में वहां पर उनको फॉरेस्ट से निकाल दिया गया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अब बेसिकली हम जानने की कोशिश करेंगे आदिवासी एक्चुअली है कौन। लेट्स सी, आदिवासी द टर्म लिटरली मींस ओरिजिनल हैबिटेट्स। यस, पहला लाइन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, पेंसिल से अंडरलाइन कर सकते हैं हम लोग। आदिवासी द टर्म लिटरली, जिसका मतलब ही होता है ओरिजिनल हैबिटेट्स। अब कैसे जरा इसको देखते हैं। आदिवासीज आर कम्युनिटी हु लाइव एंड ऑफन कंटिन्यू टू लाइव इन क्लोज एसोसिएशन विद फॉरेस्ट। बिल्कुल, आदिवासी एक वैसी कम्युनिटी है, एक ऐसा समुदाय है जो कि रहता है बहुत ही जंगलों के आसपास, या फिर यूं कह लें कि जंगलों के साथ उनकी लाइवलीहुड, उनकी लाइफ स्टाइल जो है जंगलों से जुड़ी हुई है। आगे
Around 8% of the India's population is Adivasi, and many of India's most important mining and industrial center is located in Adivasis area like Jamshedpur, Raulkela, Bokaro Steel City and Bhilai as well. ओके तो यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट एक और मिला, आप अंडरलाइन कर सकते हो। अराउंड 8% ऑफ इंडिया पॉपुलेशन इज आदिवासी, पूरे भारत का लगभग 8% जो आबादी है वो आदिवासियों का है। यस, और इतना ही नहीं कह रहा है, एंड मेनी ऑफ इंडिया मोस्ट इंपॉर्टेंट माइनिंग एंड इंडस्ट्रियल सेंटर, जितने भी माइनिंग और इंडस्ट्रियल सेंटर हैं इंडिया के, यस, लोकेटेड इन द आदिवासी एरिया। बेसिकली वो आदिवासी एरिया में लोकेटेड है। कैसे? जैसे कि कुछ एरियाज के नाम दिए हुए, एग्जांपल के तौर पे जमशेदपुर, यस, जो कि झारखंड में है, राउरकेला उड़ीसा में है, बोकारो स्टील सिटी झारखंड में है, जमशेदपुर के नेबर है, राइट, भिलाई जो कि आज छत्तीसगढ़ में, पहले मध्य प्रदेश में था, अब छत्तीसगढ़ में आ चुका है, एमंग अदर्स। यस, Adivasis are not homogeneous population. They were over 500 different आदिवासी ग्रुप इन इंडिया। लगभग 500 से भी ज्यादा आदिवासियों का ग्रुप है, कह सकते हैं। There are over 500 different आदिवासी ग्रुप, not only group, different आदिवासी ग्रुप survived in India। लगभग 500 से भी ज्यादा आदिवासी ग्रुप है जो कि इंडिया में सर्वाइव करता है। बेसिकली ये आए दिन देखने को मिलते हैं ईस्ट में और कह सकते हैं नॉर्थ में। जैसे कि आदिवासी आर पर्टिकुलरली नियरेस्ट इन स्टेट लाइक छत्तीसगढ़। यस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, नोट डाउन। छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल एंड इन अदर नॉर्दर्न स्टेट लाइक अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा ऑल्सो। यस, ये सारी जगह हैं जहां पर कमोबेश कहीं ना कहीं आपको आदिवासी कम्युनिटी है जो देखने को मिल जाएंगी। बिकॉज अभी हमने पढ़ा पूरे इंडिया की पॉपुलेशन में सिर्फ और सिर्फ 8% जो है वो सिर्फ और सिर्फ आदिवासीज हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारी जगहों से आदिवासी का बहुत ही गहरा कनेक्शन है। कहता है ए स्टेट लाइक उड़ीसा इज होम टू मोर देन 60 डिफरेंट ट्राइबल ग्रुप। और एक मात्र उड़ीसा एक ऐसा जगह है जो कि लगभग 60 से भी ज्यादा ट्राइबल ग्रुप जो हैं उनका ये घर है, होम है। यानी कि बेसिकली ये मोर देन 60 ट्राइबल ग्रुप जो है कहीं ना कहीं उड़ीसा से बिलोंग करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। यस, आदिवासी सोसाइटी आर ऑल्सो मोस्ट डिस्टिंक्टिव बिकॉज दिस इज ऑफन वेरी लिटिल हायरार्की अमंग देम। और ये बहुत ही विशेष माने जाते हैं आदिवासी, बिकॉज इनकी जो कह सकते हैं हायरार्की जो है वो टोटली कह सकते हैं बहुत ही लिटिल हायरार्की है इनकी। कैसे? दिस मेक देम रेडिकली डिफरेंट फ्रॉम द कम्युनिटी ऑर्गेनाइज अराउंड द प्रिंसिपल ऑफ जाति वर्ण। और ये लोग जो है बेसिकली कह सकते हैं मूलतः ये लोग बहुत ही अलग हैं जो हमारे समाज में, सोसाइटी में जाति वर्ण व्यवस्था जो है जिसे हम कास्ट के नाम से जानते हैं, ये कास्ट वो कास्ट, उन सारी चीजों से इनकी जो कम्युनिटी होती है वो टोटली डिफरेंट, टोटली अलग होती है। और दैट वेयर रूल्ड बाय किंग, और उन लोगों से भी अलग है जो कि किंग के द्वारा रूल किए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आदिवासी को कह सकते हैं इनका एक स्पेशल, एक प्रोमिनेंट ही कह सकते हैं, डिस्टिंक्टिव इनका कम्युनिटी होता है। इन सारे कास्ट वर्ण जो सिस्टम है उससे टोटली डिफरेंट। आदिवासी प्रैक्टिस अ रेंज ऑफ ट्राइबल रिलीजियंस दैट आर द डिफरेंट फ्रॉम इस्लाम, हिंदूज एंड क्रिश्चियनिटी। बिल्कुल आदिवासियों का जो कल्चर है, प्रैक्टिस कह सकते हैं, रिलीजन है, वो बिल्कुल भी अलग है। किनसे? इस्लामिक से, हिंदुज्म से और क्रिश्चियनिटी से बिल्कुल अलग। इनका अलग ही तौर तरीका, रिचुअल्स कह सकते हैं, ये सारी चीजें अलग होती हैं। This often involve the worship of ancestor, village and nature spirit। और हाँ, इन लोगों का कह सकते हैं कि इनका जो इन्वॉल्वमेंट होता है बेसिकली वर्शिप ऑफ एंसेस्टर, यानी अपने पूर्वजों को ये लोग वर्शिप करते हैं, पूजा करते हैं, मानते हैं, उनको सम्मान देते हैं। एंड यस, मोर इम्पोर्टेंट थिंग, विलेज एंड नेचर स्पिरिट। बिल्कुल अपने गांव को कह सकते हैं और प्राकृतिक भावनाओं का इन लोग बहुत अच्छी तरीके से आदर सम्मान करते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं, वर्शिप करते हैं। यही आदिवासियों की जो चीजें हैं वो इनको खास बनाती है और स्पेशल और डिफरेंट बनाती है इन कंपेयर टू जाति वर्ण, दैट इज कास्ट सिस्टम। जितने भी कास्ट सिस्टम उनसे इन आदिवासियों को ये सब चीजें बिल्कुल अलग बनाती है। द लास्ट एसोसिएटेड विद द रेसिडेंसिंग वेरियस साइड इन द लैंडस्केप, माउंटेन स्पिरिट। और इतना ही नहीं,
ये अपने कह सकते हैं कि आदिवासी अपने विलेज को, अपने एंसेस्टर्स को, नेचर स्पिरिट्स को, माउंटेन स्पिरिट, रिवर स्पिरिट, एनिमल स्पिरिट एक्सेट्रा, इन सब चीजों को कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट करते हैं, वर्शिप करते हैं, उसको मान सम्मान देते हैं और उसको केयर भी करते हैं साथ साथ। Yes, the village spirit are often worshipped at specific scared grove within the village boundary, while the ancestral one are usually worshipped at home. Yes, additionally, Adivasis have always been influenced by different surrounding religions in Sakt, Buddhism and Vaishnav, Bhakti and Christianity. हाँ, एक और important point यहाँ कहता है Adivasis have always been influenced by different surrounding religions. अक्सर आदिवासियों को कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ा है अलग अलग कम्युनिटीज के लोगों से, कह सकते हैं कैसे, डिफरेंट सराउंडिंग रिलीजियस, यानी कि उनके सराउंडिंग में जो भी अलग अलग रिलीजियस के लोग हैं, कम्युनिटीज हैं, लाइक सक्त, बुद्धिस्ट, वैष्णव, भक्ति एंड क्रिश्चियनिटी, इन सबों से कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस उनको देखने को मिलता था अक्सर। कैसे? Simultaneously, Adivasi religion themselves have influence dominant religion of the empire around them, और वो लोग खुद को कह सकते हैं कि ऐसे डोमिनेंट ऐसे कम्युनिटीज हैं जो बेसिकली अपना ही एक अलग ही रिचुअल, अपने परफॉर्मेंस, अपने ये सब चीजों को लेकर चलते हैं और वो खुद पे करते हैं। फॉर एग्जांपल देखते हैं जगन्नाथ कल्ट ऑफ ओडिशा एंड शक्ति एंड टेंट्रिक ट्रेडिशनल इन बंगाल एंड आसाम। अगर इन सब चीज़ों को देखें तो ये लोग अपने ही रिचुअल्स को मानते हैं, अपने एंसेस्टर को मानते हैं, प्राकृतिक से जुड़ी चीज़ों को देखते हैं। और एग्जांपल के तौर पर देखें तो जगन्नाथ कल्ट ओडिशा का जो है और शक्ति एंड टेंट्रिक ट्रेडिशन इन बंगाल और आसाम है, इसको ये लोग बेसिकली इस चीज़ों को इससे बिलोंग करते हैं, इसको मानते हैं। ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी सब्सटेंशियल नंबर ऑफ आदिवासी कन्वर्टेड टू द क्रिश्चियनिटी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ देखने को मिला, कह रहा है ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी, ये बात है 19वीं शताब्दी की, लगभग 19वीं शताब्दी की, ड्यूरिंग 19th सेंचुरी सब्सटेंशियल नंबर ऑफ आदिवासी कन्वर्ट, नंबर ऑफ आदिवासी बहुत सारे कह सकते हैं, नंबर ऑफ आदिवासी जो है वो कन्वर्ट हो गए किस चीज में। अभी अभी मैंने आपको बताया कि आदिवासी कम्युनिटी जो है वो टोटली डिफरेंट इन कंपेयर टू हिंदूज, इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी से टोटली डिफरेंट का, रिचुअल्स अलग है, वे ऑफ वर्शिप अलग है, इनका जो डेटीज है वो भी टोटली अलग है कहीं ना कहीं। लेकिन 19th सेंचुरी की बात करें तो एक यहाँ चेंजेस देखने को मिला, क्या है, सब्सटेंशियल नंबर ऑफ आदिवासी कन्वर्टेड इनटू क्रिश्चियनिटी। बहुत सारे आदिवासी जो है वो कन्वर्ट हो गए किस चीज में, क्रिश्चियनिटी में। यस, व्हिच हैज इमर्ज्ड अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलीजन इन मॉडर्न आदिवासी हिस्ट्री, जो कि आगे चल के मॉडर्न आदिवासी यानी आधुनिक आदिवासियों के इतिहास में ये आगे उभर कर सामने आया। आगे देखते हैं क्या है। और आदिवासी हैव देयर ओन लैंग्वेज, मोस्ट ऑफ देम रेडिकली डिफरेंट फ्रॉम द प्रोबेबली ओल्ड इन संस्कृत। कह सकते हैं कि आदिवासियों का एक अपना ही लैंग्वेज हुआ करता था, हैव देयर ओन लैंग्वेज, मोस्ट ऑफ देम रेडिकली, मूल रूप से कह सकते हैं उनमें ज्यादातर जो आदिवासी थे डिफरेंट फ्रॉम द पॉसिबली ओल्ड एज संस्कृत, जैसे कि संस्कृत भाषा जो सबसे पुराना माना जाता है उससे कुछ आदिवासियों का लैंग्वेज जो था कहीं ना कहीं डिफरेंट था, कुछ का जो है मूल रूप से उस तरह के थे। कैसे? विच हैव ऑफन डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय इंफॉर्मेशन ऑफ मेन स्ट्रीम्स इंडिया लैंग्वेज, और वो उनका प्रभाव कह सकते हैं भारत की जो लैंग्वेजेस थे, जो मुख्य धारा में जो लैंग्वेजेस बोले जाते थे उससे कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस पड़ा था उन लैंग्वेजेस के लेके। लाइक बंगाली, संथाली हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्पीकर, हैड टू सिग्निफिकेंट बॉडी ऑफ पब्लिकेशन इंक्लूडिंग मार्जिनाइज ऑन द इंटरेक्ट ऑफ द रीजन। और कहीं ना कहीं बंगाली और कह सकते हैं संथाली जो था बेसिकली आदिवासियों के द्वारा सबसे ज्यादा और सबसे बड़ा बोले जाने वाला भाषा में था, जिसके आधार पर कह सकते हैं कि मार्जिनलाइज जो है, मार्जिन्स ऑन द इंटरेक्ट ऑफ द ईजेंस, ये बहुत बड़ा मार्जिन दिखाता कि जो बेसिकली ज्यादातर आदिवासी जो थे वो कहीं ना कहीं संथाली, हालांकि भाषा तो बहुत सारे पुरातन भाषा जो थे बहुत सारे देखे जाते थे, लेकिन उस समय ये भाषा सबसे ज्यादा संथालियों के द्वारा, आज भी कहीं ना कहीं संथालियों के द्वारा इस तरह के भाषा को लैंग्वेजेस को इस्तेमाल किए जाते थे। तो ये हमारे संथाली आदिवासी के बारे में थे कि बेसिकली आदिवासी कौन थे, कैसी लैंग्वेज बोलते थे, इनका अलग कम्युनिटी था, कंपेयर करें हिंदू, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी से तो कहीं ना कहीं अलग था। लेकिन एक कंडीशन ऐसा भी आया जब मोस्टली नंबर ऑफ आदिवासी जो थे कन्वर्ट हुए किस रिलीजन में, आप सब जानते हो, ठीक है, और इनका जो लैंग्वेज था बेसिकली संथाली था, कह सकते हैं। तो ये आदिवासी के बारे में इंट्रोडक्शन था। आगे हम पढ़ेंगे आदिवासी एंड स्टीरियोटाइप्स। अब स्टीरियोटाइप्स वर्ड का इस्तेमाल क्यों हुआ आदिवासी के साथ, जरा इसके ऊपर एक ध्यान दें, एक छोटा सा नजर डाल लेते हैं। लेट्स सी। In India, we usually showcase Adivasi community in particular ways. Thus, during school function or other official event, or in books and movies, Adivasis are
कह सकते हैं इनवेरिएबली portrayed in ear and stereotype ways in colorful costumes, yes, head gear and throw in the their dancing। बिल्कुल सही बात है। कहीं भी अगर हम इससे थोड़ा अलग जाके बात करें तो हम देखेंगे कभी भी, जब कभी या तो बुक देख लो आप, कहीं ड्रामा देख लो, कहीं स्टेज शो देख लो, या फिर कह सकते हैं कि स्कूल फंक्शंस हो गया, कोई भी किसी प्रकार का इवेंट हो गया, अगर वहां पे किसी भी इवेंट में अगर सिचुएशन में आदिवासी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट किया जा रहा है तो अक्सर वहां पे स्टीरियोटाइप तरीके से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। कैसे? उसमें कहता है कि जैसे कि इनके कॉस्ट्यूम्स को अक्सर कलरफुल दिखाया जाएगा, ठीक है, हेड गियर भी दिखाया जाएगा, माथा पर पगड़ी बांधे आदिवासी कम्युनिटीज होते हैं। इनका जो इस तरह का जो इमेज है ये हमेशा फिक्स होता है लोगों की नजर में। अगर कलरफुल ड्रेसेस है, माथे में पगड़ी है, इस तरह की चीजें हैं, ठीक है, और वो कहीं ना कहीं डांस कर रहे हैं तो आदिवासी समझा जाता है, कहेंगे आदिवासी, क्योंकि आदिवासियों को एक स्टीरियोटाइप समझा जाता है, एक इमेज इनका बना दिया गया, क्रिएट कर दिया गया है, जिससे अक्सर आदिवासियों का ये आइडेंटिटी वहां पे डिसाइड कर दिया। कह रहा बिसाइड दिस वी सीम टू नो वेरी लिटिल अबाउट द रियलिटी ऑफ देयर लाइव्स। इन सब के बावजूद हम बहुत ही कम उनके बारे में जानते हैं, एक्चुअली उनका लाइफ जो था वो कैसा था, किस प्रकार का। बिकॉज हम सब ने दद्दू की जो स्टोरी सुनी थी उसमें दद्दू ने एक लाइन जिक्र किया था कि आदिवासियों की जो लाइवलीहुड थी, जो वे ऑफ सर्वाइव था, वो बहुत ही रिच था। आदिवासी बहुत रिच हुआ करते थे क्योंकि वो बेसिकली नेचर से जुड़े हुए थे, तो कहीं ना कहीं उनका स्टाइल बहुत अलग था। दिस ऑफन रॉन्गली लीड टू पीपल बिलीविंग दैट दे आर एक्सोटिक, प्रिमिटिव एंड बैकवर्ड। और ये बहुत ही गलत तरीके से इसको समाज में अक्सर पेश किया जाता है कि जो आदिवासी होते हैं वो अक्सर क्या होते हैं, प्रिमिटिव होते हैं, यानी प्राचीन काल से एक्सोटिक होते हैं, जो कि हमारे सोसाइटी से बिलोंग ना करके कहीं बाहर से आए हुए हैं। और बैकवर्ड, सबसे बड़ी पैराडॉक्स तो है कि उन्हें बैकवर्ड दिखाया जाता है। ये समाज सोसाइटी का एक स्टीरियोटाइप बन चुका है, ठीक है। इन सब जब भी आदिवासी की बात होती है इन सारी चीजों का जिक्र होता है कि आदिवासी आर ऑलवेज एक्सोटिक, प्रिमिटिव, राइट, एंड बैकवर्ड। Often Adivasis are blamed for of their lack of advancement, as they believe that the resistant change and new ideas. You will remember that you will read in class 6 book how stereotype particular communities can lead the people discriminate against the such group. Yes, अक्सर इस चीज को दिखाया गया कि आदिवासी जो है वो मतलब कह सकते हैं कि उनका एक इमेज, जो छवि जो बनाई गई हमारे समाज में वो फिक्स कर दी गई है, बल्कि ऐसा वास्तव में नहीं है। हाँ, माना आदिवासी जो है वो एडवांसमेंट का उपयोग नहीं करते, ज्यादा एडवांस होना पसंद नहीं करते, वो अपने कल्चर, अपने रिलीजन से जुड़े हुए हैं, अपने सोशल प्रैक्टिस से जुड़े हुए हैं, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं कि आदिवासियों को स्टीरियोटाइप के तौर पर देखा जाए। और जैसे क्लास 6 में हमने पढ़ा था और हमने देखा भी था कि स्टोरी स्टीरियोटाइप पर्टिकुलर कम्युनिटी कैन लीड द पीपल डिस्क्रिमिनेटिंग अगेंस्ट द सच ग्रुप। स्टीरियोटाइप जो पीपल होते हैं कहीं ना कहीं एक लीड करते हैं, उनका पीपल जो लीड किए थे याद है आप लोगों क्लास 6 में पढ़ा होगा, जो कि डिस्क्रिमिनेटिंग, अक्सर डिस्क्रिमिनेट किया गया था उनके खिलाफ, एक तरह का जो कह सकते हैं लीड हुआ था, प्रोटेस्ट हुआ था। इन सब चीजों का आपने इस ग्रुप के, इस तरह का ग्रुप जो था उसके खिलाफ जो प्रोटेस्ट लीड किए थे लोगों ने, वो आपने क्लास 6 में पढ़ा होगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं आदिवासियों को हमेशा एक पर्टिकुलर फॉर्म में दिखाया गया, उनका एक इमेज क्रिएट कर दिया गया, इसलिए कहीं ना कहीं कहा गया आदिवासी एंड स्टीरियोटाइप। ये स्टीरियोटाइप की छवि जो है समाज में बन गई कि रंगीन कपड़े हैं, माथे में पगड़ी है और वो डांस कर रहे हैं, जंगलों से बिलोंग कर रहे, तो वो आदिवासी होंगे, ठीक है। वो हो गई अलग बात। लेकिन आगे हम देखेंगे आदिवासी एंड डेवलपमेंट। यस, आगे अगर हम बात करें तो हम इस चीज को देखेंगे आदिवासी जो थे और उनकी डेवलपमेंट कैसे हुई थी, आगे चल के आदिवासी का डेवलपमेंट हुआ। ये जो स्टीरियोटाइप अभी जो मैंने टॉपिक डिस्कस किया आदिवासी एंड स्टीरियोटाइप, इस चीज को कहीं ना कहीं ब्रेक करके इसका जो प्रोटोकॉल जो बन चुका था उस प्रोटोकॉल को ब्रेक करके आदिवासियों का भी डेवलपमेंट हुआ था। अब किस वे में डेवलपमेंट हुआ था, कैसे हुआ था, ये सारी चीजें हम आगे डिस्कस करेंगे, ओके, इन नेक्स्ट क्लास।